Hello, a very good morning to all of you students. So today we are going to discuss chapter 5. The chapter 5 name is periodic classification of elements. So here in this chapter we are going to see the how the periodic table is classified and who's the maker of that. So in class 9 we have learned that the matter around us is present in the form of elements, compounds and mixtures. And the elements contain atoms of only one type. Do you know how many elements are known till date? At present, 118 elements are known to us, and all these have properties. Out of this 118, only 94 are naturally occurring. As different elements were being discovered, scientists gathered more and more information about the property of this element. They found it difficult to organize all that was known about the elements. They started looking for some pattern in their property on the basis of which they could study such a large number of elements with ease. अब देखिए यहाँ पे जो बात की गई है वो क्या की गई है, यहाँ पे बताया गया है कि आपने क्लास 9 में देखा होगा कि कई सारे एलिमेंट्स जो है नेचुरली ऑकर किए गए, लेकिन क्या आपको पता है कि एट प्रेजेंट आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? तो वो क्या है, 118 एलिमेंट है, जिसमें से 94 जो है ये नेचुरली हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं उन्हें क्या किया गया है, बनाया गया है, मिक्स करके न्यू एलिमेंट्स जो हैं बनाए गए हैं। तो कई सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन सारी चीज़ों पे इन्फॉर्मेशन गैदर की है और उस गैदर इन्फॉर्मेशन के बेस पे एक नया पीरियोडिक टेबल बनाया है विद द ईज़ ऑफ एलिमेंट, ताकि कोई चीज़ को मतलब ढूंढने और समझने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी ना हो। नाउ वी सी मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द क्योर्स अर्ली अटैम्प्ट एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अब देखिए जो अर्ली अटैम्प्ट हुए थे क्लासिफिकेशन करने के लिए एलिमेंट में, वो किस तरह से हुए थे वो हम देखेंगे। वी हैव बीन लर्निंग हाउ वेरियस थिंग्स आर लिविंग बीइंग कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. Even in the other situation, we come across the instances of organization based on some property. For example, in shop, soaps are kept together at one place while the biscuits are kept together elsewhere. Even among the soaps, bathing soaps are stocked separately from the washing soaps, and similarly, the scientists made a several attempts to classify elements according to their property and obtain an orderly arrangement out of the chaos. The earliest attempt to classify the elements resulted in the grouping the then known elements as the metal and non-metal. Later further classification were tried out as the knowledge of element and their properties increased. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है, आपने जैसे देखा है जब भी आप किसी ग्रोसरी शॉप में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, सारे चीज़ें जो है वो अलग अलग जगह पे एक अपने स्टैक में लगी होती है। अगर हम सपोज सोप की बात करें यानी साबुन की बात करें तो साबुन भी क्या होता है, पूरे मटेरियल में से एक अलग जगह पे रखा होता है। उसमें से भी जो है नहाने का साबुन अलग होता है और कपड़े धोने और बाकी चीज़ों का जो साबुन होता है वो अलग रखा होता है, यानी एक प्रॉपर्ली स्टैक बना होता है। तो सेम इसी तरह से साइंटिस्ट चाहते थे कि जो एलिमेंट्स हैं यानी जो भी मेटल है, नॉन मेटल है या बाकी चीज़ें, इनका भी एक क्लासिफिकेशन हो और ये प्रॉपर्ली हो। तो इस सारी चीज़ों के लिए साइंटिस्ट ने कई सारे अटैम्प्ट किए हैं ताकि जो एलिमेंट्स मेटल के नाम से जाने जाते हैं उन्हें उनकी एक अलग ग्रुपिंग हो, नॉन मेटल जो है उनकी अलग ग्रुपिंग हो, गैसेस जो हैं उनकी अलग ग्रुपिंग हो। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे आगे। नाउ वी सी द डोबेर्नियस ट्रायड। अब जो डोबेर्नियर थे उनका ट्रायड किस तरह से उन्होंने मेंटेन किया था वो हम चलिए देखते हैं आगे। इन द ईयर 1817 जॉनसन वॉल्फगैंग डोबेर्नियर अ जर्मन केमिस्ट ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू अ ग्रुप्स. He identified some groups having 3 elements each, and so he called this group a triad. Dauvergne showed that when the 3 elements in a triad were written in the order of increasing atomic masses, the atomic mass of the middle element was roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements. For example, take the triad consisting of lithium, sodium and potassium with the respective atomic mass of 6.9, 23.0 and 39.0. What is the average of the atomic masses of the lithium and potassium? How does this compare with the atomic mass of sodium? Given below table are some groups of the 3 elements. These elements are arranged downwards in order of increasing atomic masses. Can you find out which of this group form a Dauvergne triad? अब देखिए डोबेर्नियर का कहना था कि उन्होंने जिस हिसाब से एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी उस ग्रुपिंग में क्या था कि उन्होंने इस तरह की ग्रुपिंग की थी कि उसमें 3 एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे।
और जो ये 3 एलिमेंट्स उन्होंने रखे थे उनका कहना था कि इनका जो एटॉमिक मास है लगभग 2 एटॉमिक मास का जो भी निकलता है उसी का मेजरमेंट लगभग मिलता जुलता मिडल वाले का निकलता है। इस बेसिस पे उन्होंने तीन जो थे हमारे जो एलिमेंट्स थे उनकी ग्रुपिंग की थी, जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो लिथियम और पोटेशियम है इनको अगर हम प्लस करके जो भी डिवाइड करें 2 से, तो उसके बाद जो इसका अप्रॉक्सीमेट मास निकलता है वही लगभग रफली कैलकुलेशन होता है मिडल वाले का, यानी किसका, सोडियम का। तो इस तरह से उन्होंने अपना निकालना शुरू किया और यहाँ पे कई सारे एलिमेंट्स उन्होंने बनाए, जिसमें से उन्होंने ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, जब इन्होंने ये करना शुरू किया तो लगभग सिर्फ 3 ग्रुप के ही एलिमेंट्स वो बना पाए, बाकियों में ये चीज़ अप्लाई नहीं हो पाई। अब देखिए यहाँ पे जो येलो बॉक्स है यहाँ पे बताया गया है डोबर्नियर के बारे में, उनकी डेट ऑफ बर्थ से डेट ऑफ डेथ तक और बाकी सारी चीज़ें। टेबल पॉइंट 5.2 जो है ये डोबर्नियर का ट्रायड है, उन्होंने जो 3 एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की थी उन पे उन्होंने जिस तरह का ट्रायड बनाया था ये उनका बनाया हुआ है, जैसे लिथियम, कैल्शियम और क्लोरीन, इसके हिसाब से। अब चलिए हम देखेंगे आगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। अब जो न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव है, अब चलिए हम देखते हैं उसमें क्या है। The attempt of the Duvernay encouraged other chemists to correlate the property of the element with their atomic masses in 1886. John Newland, the English scientist, arranged the then known elements in an order of increasing atomic masses. He started with the element having the lowest atomic mass and ended the thorium, which was the 56th element. He found that every 8th element had a property similar to that of the first. He compared this to the octave found in a music. Therefore, he called the law of octave. It is known as the Newland's law of octave. In Newland's octave, the property of a lithium and the sodium were found to be the same. Sodium is the 8th element after the lithium. Similarly, the beryllium and the magnesium resemble each other. A part of the original form of the Newland's octave is given in table 5.3. अब देखिए यहाँ पे जो है ये न्यूलैंड का ऑक्टेव क्या कहता था कि इनका ये कहना था कि जो भी एलिमेंट है उसका 8th एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से जो है अपनी प्रॉपर्टी लगभग उसकी सेम रहती है। इसलिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस थ्योरी का नाम न्यूलैंड्स ऑक्टेव रखा था और ये बेस्ड ऑन म्यूज़िक थी। इसके साथ साथ जो है उन्होंने अपना जो टेबल बनाया, क्योंकि जब डोबर्नियर ने ये सारी चीज़ें की तो कहीं ना कहीं और भी साइंटिस्ट जो थे वो इससे इंस्पायर हुए थे, वो भी चाहते थे कि वो इस टेबल को जो है प्रॉपरली अरेंज करें, क्लासीफाई कर सकें। तो जब न्यूलैंड ने अपनी लॉ ऑफ ऑक्टेव की थ्योरी दी तो उन्होंने ये चीज़ देखा, जब उन्होंने टेबल बनाया तो ये सारी चीज़ें सिर्फ कैल्शियम तक ही सही आ पाई। इसके बाद के कैलकुलेशंस जो थे वो गड़बड़ होने लगे थे और ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई। अब चलिए यहाँ पे हम देखते हैं अब हम यहाँ पे देखते हैं आगे। अब देखिए वहाँ पे अपने टेबल में एक चीज़ नोटिस की होगी, नोट्स ऑफ म्यूज़िक, जैसे हम सारे गामा पा बोलते हैं, इट्स लाइक अ डू रे मी फा सो ला टी, ओके, एंड दिस इज़ द वे इट इज़ गोइंग। लाइक अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूँ तो हाइड्रोजन से जब मैं गिनना स्टार्ट करूँगी तो नेक्स्ट 8th एलिमेंट जो आता है वो क्या आता है, फ्लोरीन का आता है, और दिस इज़ हियर, और सेम विद द क्लोरीन एंड देन निकेल एंड दी अदर थिंग। सो ये जो चीज़ है ये इस तरह से ही जा रही थी, यानी सबका जो है वो 8th एलिमेंट लगभग सेम आ रहा था क्योंकि वो उसी ग्रुप में आ रहा था। बट ये चीज़ कैल्शियम तक ही हो पाई, इसके बाद ये आगे नहीं बढ़ पाई। अब चलिए हम देखते हैं आगे। इट वॉज फाउंड, इसकी जो कुछ लिमिटेशंस थी वो क्या थी अब वो हम देखेंगे। इट वॉज फाउंड दैट द लॉ ऑफ ऑक्टेव वॉज एप्लीकेबल ओनली अप टू द कैल्शियम, एज आफ्टर द कैल्शियम एवरी 8th एलिमेंट डिड नॉट possess द प्रॉपर्टी सिमिलर टू दैट ऑफ द फर्स्ट। यानी ये चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, यानी कि जो इनका कैलकुलेशन गया था वो कैल्शियम तक ही सेम गया था, क्योंकि बाकियों की जो प्रॉपर्टी है वो फर्स्ट एलिमेंट, यानी जो उसकी फर्स्ट एलिमेंट से उसको 8th एलिमेंट लिया जा रहा था उस प्रॉपर्टी से जो है वो मैच नहीं खा रही थी। जैसे हम यहाँ पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है और बाकी चीज़ें कहीं ना कहीं सिमिलर आ रही थी, बट बाकी के कैल्शियम के बाद के केस में ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी। It was assumed by a Newland that only 56 elements existed in a nature and no more element would be discovered in the future. But later on, the several new elements were discovered whose property did not fit into the law of octave. अब देखिए
ये जो न्यूलैंड थे उनका ये भी मानना था कि जितने 56 एलिमेंट डिस्कवर कर लिए गए हैं नेचर में, ये बस इतने ही रहेंगे, इससे ज़्यादा एलिमेंट वो कभी भी डिस्कवर नहीं होंगे, ना ही लाए जाएंगे। लेकिन जल्द ही क्या हुआ, और भी नए एलिमेंट्स को डिस्कवर किया गया, और डिस्कवर होने के बाद जब वो इस लॉ ऑफ एक्टिव में वो उन्हें फिट करने की कोशिश की तो वो फिट भी नहीं हो पाई। तो दूसरा जो उनका ड्रॉबैक था वो ये था, यानी लिमिटेशंस थी। थर्ड हम देखेंगे, इन ऑर्डर टू फिट एलिमेंट इनटू हिज टेबल द न्यूलैंड adjusted a 2 element in the same slot but also put some unlike elements under the same node. Can you find example of this from table 5.3? Sorry, I forgot the line. Okay, note that the cobalt and nickel are in the same slot and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have a very different property than this element. Iron, which has resembled the cobalt and nickel in a property, has been placed far away from this element with the discovery of a noble gases. The law of octave become irrelevant. देखिए यहाँ पे जो किया गया है, कोबाल्ट और निकेल को एक साथ रख दिया जबकि इनकी प्रॉपर्टी उतनी सिमिलर नहीं है। और दूसरी जगह जहाँ पे अगर हम बात करें, जो दूसरे एलिमेंट यहाँ पे बताए गए हैं जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन जो है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टी रखते पर उनको जो है एक साथ एक ही कॉलम में रखा गया। तो ये किस तरह की कई सारी जो है ग्रुपिंग में मिस्टेक देखने को उन्हें मिली थी, तो ये भी इसका एक जो है ये इररिलेवेंट था। इसके बाद जो है द न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वर्कड वेल विद द लाइटर एलिमेंट्स ओनली। और जो न्यूलैंड का ये जो लॉ था, लॉ ऑफ ऑक्टेव, ये जो लाइटर वेट के एलिमेंट थे ये उनके साथ ही सही था, बाकी के साथ ये सही नहीं चल पा रहा था। अब हम देखेंगे आगे, मेकिंग ऑर्डर आउट ऑफ द क्योर्स द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अब मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल जो है अब हम वो देखेंगे आगे। The main credit for classifying element goes to the Dmitry Ivanovich Mendeleev, a Russian chemist. He was the most important contributor to the early development of the periodic table of the element, wherein the elements were arranged on the basis of their fundamental property of the atomic mass and also on the similarity of the chemical property. अब देखिए जो मेंडलीव है, मेंडलीव का जो क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल में बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से जो है पीरियोडिक टेबल को सेट किया है, इवन जो प्रेजेंट एलिमेंट थे उसके लिए और जो इन फ्यूचर डेवलप किए जा सकते हैं उनके लिए भी। और ये पीरियोडिक टेबल जब उन्होंने बनाया तो वो केमिकल प्रॉपर्टी प्लस प्लस उसके साथ साथ जो भी उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी और उसका एटॉमिक मास था उसके बेस पे बनाया था। When Mendeleev started his work, 63 elements were known, and he examined the relationship between the atomic masses and the elements of the elements and their physical and the chemical property. अब जब मेंडलीव ने इस पे काम करना शुरू किया तो उस टाइम पे 63 एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर्ड हो चुके थे, जाने लगे थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी एग्जामिन करना शुरू किया कि एटॉमिक मास जो है उसका उस एलिमेंट का उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी जो है किस तरह से उसका रिलेशनशिप है, उन्होंने उस पर भी रिसर्च की। अमॉन्ग द केमिकल प्रॉपर्टीज मेंडलीव कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट विद ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। इसके साथ साथ उन्होंने इस चीज़ पे भी गौर किया कि जब भी किसी भी एलिमेंट का रिएक्शन करवाया जा रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ तो वो किस तरह का कंपाउंड जो है वो फॉर्म कर रहा है। He selected hydrogen and oxygen as their very reactive and formed of compound with the most elements। और उन्होंने ये पाया कि जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिएक्टिव और एलिमेंट और कंपाउंड जो है वो फाउंड करते हैं, बेसिकली फॉर्म करते हैं। द फॉर्मूला ऑफ hydrides and the oxides formed by the element were treated as one of the basic property of the element of its classification। और ये जो फार्मूला था हाइड्राइड का और ऑक्साइड का, जिस तरह से वो एलिमेंट को ट्रीट करता था, ये बहुत ही ज़्यादा बेसिक प्रॉपर्टी का जो है क्लासिफिकेशन यहाँ पे किया गया था। ही देन टुक अ 63 कार्ड्स एंड ऑन ईच कार्ड ही रोट डाउन द प्रॉपर्टी ऑफ वन एलिमेंट एंड ही सॉर्टेड आउट द एलिमेंट विद अ सिमिलर प्रॉपर्टी एंड पिन द कार्ड टुगेदर ऑन द वॉल। ही ऑब्जर्व दैट द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट गॉट अ प्लेस इन अ पीरियोडिक टेबल एंड वर अरेंज्ड इन ऑर्डर टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। It was also observed that there occurs a periodic recurrence of the element with a similar physical and a chemical property. On the basis of the Mendeleev formulated a periodic law which states the property of an element as the periodic function of their atomic masses। मेंडलीव ने जिस तरह से उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने कई सारे कार्ड्स लिए और सारे 63 एलिमेंट्स के जो भी केमिकल प्रॉपर्टी, एटॉमिक मासेस या जो उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है उसके बारे में लिखा और उसको एक वॉल पे जो है उन्होंने अरेंज करना शुरू किया। और उन्होंने ये पाया कि लगभग सारे एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने अरेंज कर लिए हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ एलिमेंट।
इसके साथ साथ मेंडलीव्स का जो पीरियोडिक टेबल है वो एक वर्टिकल कॉलम और एक हॉरिजॉन्टल रो जो है वो फॉर्म करता है, जिसमें से वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है और हॉरिजॉन्टल रो को पीरियड कहा जाता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे बनाया गया है। अब चलिए हम देखेंगे अचीवमेंट्स क्या थे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के, और जो लिमिटेशंस थी वो क्या थी। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ जो ग्रुप बनाया गया है, जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उन्हें हम ग्रुप कह रहे हैं और जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं उन्हें हम पीरियड कह रहे हैं। इसमें भी जो देखिए ए बी करके 2 ग्रुपिंग्स की गई है। ओके, इसके साथ साथ जो देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और बाकी की चीज़ें हैं इन्हें हम, तो देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट बना हुआ है जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं, अल्कलाइन मेटल्स कहते हैं। इसके साथ साथ जो आप दूसरे कॉलम में यानी 7th कॉलम में देख सकते हैं जो बना हुआ है फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे जो हैं इन्हें हम हैलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। तो ये सारे जो है हैलोजेंस हैं। इसके साथ साथ ऊपर जो आप देख रहे हैं R2O, RH फैक्टर्स, तो यहाँ पे बेसिकली H अगर हाइड्रोजन के साथ वो रिएक्ट कर रहे हैं तो R की जगह पे क्या आएगा, हाइड्रोजन आएगा। यानी R2O है तो अगर आप वहाँ पे हाइड्रोजन का H रखते हैं तो दिस विल फॉर्म द H2O। एंड सेम विद द अदर थिंग, जैसे कि मान लीजिए RH है तो उसमें जो है आप अल्कलाइन मेटल्स फॉर्म करते हैं। तो जैसे लिथियम है तो R की जगह वहाँ पे क्या है, सेकेंड ग्रुप में लिथियम आएगा तो लिथियम H आएगा, यानी लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो कुछ इस तरह से जो है वो मेटल फॉर्म करेंगे। ग्रुपिंग जो है कुछ इसी तरह से की गई है। अब इसके साथ साथ हम इसके लिमिटेशंस भी पढ़ेंगे और अचीवमेंट्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं अचीवमेंट्स क्या थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। While developing the periodic table, there were a few instances where the Mendeleev had to place an element with a slightly greater atomic masses before an element with a slightly lower atomic masses. The sequence was before and inverted so that the element with a similar property could be grouped together. For example, cobalt appeared before a nickel, and looking at the table 5.4, can you find out one more such an anomaly? अब देखिए यहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया है कि सबसे उनका ये मानना था कि उन्होंने जिस तरह से टेबल को अरेंज किया है, जो भी एटॉमिक मास होगा स्लाइटली ग्रेटर दैन वाला जो है वो उसके ऊपर होगा और स्लाइटली जो लोअर है वो उसके नीचे होगा। यानी उन्होंने एटॉमिक मास के अकॉर्डिंगली इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर में उन्होंने बेसिकली जो है एलिमेंट को सेट किया था। तो कुछ इसी तरह से उन्होंने सेट किया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे गड़बड़ देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो कोबाल्ट और निकेल है उसके इसमें जो 58.93 है, ये इसका एटॉमिक मास जो है निकेल से क्या है थोड़ा ज़्यादा है। यानी पहले निकेल को आना चाहिए था, फिर कोबाल्ट को आना चाहिए था। तो यहाँ पे भी जो है ये एक छोटी सी गलती उनसे हुई थी। इसके साथ साथ एक और जो है आप देख सकते हैं जो स्लाइटली तो देखिए एक और गलती जो है वो आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि आपने देखा है कि एक जो टेबल है यहाँ पे जो फॉर्म किया गया है टेलुरियम और आयोडीन, इसमें भी टेलुरियम का वेट जो है 127 है और आयोडीन का जो है 126 है। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आयोडीन को आना चाहिए था, उसके बाद टेलुरियम को जाना चाहिए था। तो एक और लिमिटेशन जो है यहाँ पर ये मिलती है। इसके साथ साथ देखिए further, the Mendeleev left some gaps in the periodic table. Instead of looking upon these gaps as a defect, Mendeleev boldly predicted that the existence of some element that had not been discovered at that time. Mendeleev named that by a prefix of a Sanskrit numerical, which is a eka, 1 to the name of the preceding element in the same group. For instance, of a scandium, gallium, and the germanium discovered later have the properties similar to the eka boron, eka aluminium, the eka silicon respectively. The property of a eka aluminium predicted by the Mendeleev and those of the element gallium which was discovered later the replaced eka aluminium are listed as follows. Now 5.5 देखिए जो एका एल्यूमिनियम है या गैलियम है उनकी जो भी उन्होंने एटॉमिक मास और वेट प्रॉपर्टी जो भी उन्होंने डिस्कवर की थी लगभग क्या है वो सिमिलर थी। यानी जो एका एल्यूमिनियम के नीचे जो उन्होंने सेट किया था कि उनका जो एटॉमिक मास है लगभग 68 आएगा, तो गैलियम में क्या आया था इट वॉज 69.7। तो इस तरह से जो है उन्होंने उसको सेट किया था। Now we see that this provides the convincing evidence for both the correctness and useful of the Mendeleev's periodic table। मतलब कुछ एलिमेंट्स जो उन्होंने तभी जब वो डिस्कवर नहीं हुए थे तभी उन्होंने उसके लिए जगह जो है पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी थी और लगभग जो उनका प्रेडिक्शन था वो उसमें सेट होता हुआ आया। अब हम चलिए देखेंगे आगे।
It was the extraordinary success of the Mendeleev's prediction that led a chemist not only to accept his periodic table but also recognize him as the originator of the concept on which it is based. Noble gases like helium, neon, argon, and have been mentioned in many contexts before this. These gases were discovered very late because they are very inert and present in extremely low concentration in our atmosphere. One of the strengths of the Mendeleev's periodic table was that when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. अब इसके साथ साथ उन्होंने उस टाइम पे एक चीज़ ये भी फिक्स कर दी थी कि जो गैसेस फॉर्म होगी उसके लिए एक अलग ग्रुप बनाया जाएगा, ताकि क्या हो कि ये जो गैसेस हैं इनका जो है ये बाकी किसी ग्रुप के एलिमेंट को डिस्टर्ब ना करे। अब चलिए इसका लिमिटेशंस भी देखते हैं, लिमिटेशंस क्या क्या थी। Electronic configuration of the hydrogen resembles that the alkali metal, like a alkali metal of a hydrogen combined with the halogen, oxygen and the sulfur to form a compound having the similar formula as shown in the एग्जाम्पल हियर। अब देखिए यहाँ पे जो सबसे बड़ा लिमिटेशन था वो क्या था, हाइड्रोजन के साथ था, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा कंपाउंड है जो अल्कलाई मेटल्स के साथ भी जब वो फॉर्म कर रहा है तो वो कुछ इस तरह से ही फॉर्म कर रहा है जो चीज़ें चाहिए होती थी, और जो सोडियम बाकी के मेटल्स के साथ जब वो फॉर्म कर रहे हैं तो भी वो उसी तरह से फॉर्म कर रहे हैं। तो उनका बेसिकली मानना था, बेसिकली एक जो उसकी लिमिटेशन निकली थी ये कि हाइड्रोजन को अल्कलाई मेटल्स के साथ उस ग्रुप में प्लेस करना चाहिए या फिर हैलोजन ग्रुप में प्लेस करना चाहिए। ये एक मेन लिमिटेशन जो है निकल के आई थी। ऑन दी अदर हैंड मतलब बेसिकली जो हाइड्रोजन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो लगभग क्या है, अल्कलाई मेटल्स से भी मिलती जुलती थी और हैलोजन के एलिमेंट्स से भी मिलती जुलती थी। Certainly, the no fixed position can be given to the hydrogen in the periodic table. This was the first limitation of the Mendeleev periodic table. He could not assign a correct position to the hydrogen in his table. Isotopes were discovered long after the Mendeleev had proposed his periodic classification of the element. Let us recall that the isotopes of an element have a similar chemical property but are different atomic masses. अब देखिए आइसोटोप क्या है, यानी जो केमिकल है उसकी सिमिलर जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी रहेगी, पर उसका मेन जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए बताया गया है एक्टिविटी में कि क्लोरीन 35 भी है, क्लोरीन 37 भी है, एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग इसे कैसे अरेंज करना चाहिए। तो ये चीज़ जो है ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी, तो यही बहुत बड़ा था। पर इन्होंने जो है प्रेफरेंस दिया था उसके केमिकल प्रॉपर्टी को, यानी केमिकल प्रॉपर्टी अगर क्लोरीन की एक जैसी है तो क्लोरीन को एक जगह ही सेट किया गया था और एटॉमिक मास को कंसिडर नहीं किया गया था। Thus, the isotopes of the all elements posed a challenge on the Mendeleev's periodic table. Another problem was that the atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So, it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier element. अब चलिए हम देखेंगे आगे। Making order out of the chaos, the modern periodic table. In 1993, the Henry Moseley showed that the atomic number, which is symbolized as a Z of an element of a more fundamental property than its atomic mass. Accordingly, Mendeleev periodic law was modified and the atomic number was adopted as the basis of the modern periodic table, and the modern periodic law can be stated as follows. The properties of the elements are the periodic function of their atomic number in the nucleus of an atom, and this number is increases by 1 in a going from one element to the next elements. When arranged in order of increasing atomic number, lead us to the classification known as the modern periodic table. Prediction of the property of an element could be made one or precision when the elements were arranged on the basis of increasing atomic number. अब देखिए जब नया ऑर्डर आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने का, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाने वक्त जो है प्रॉपर्टीज़ और बाकी से यानी जो हेनरी मॉसले थे उन्होंने एटॉमिक नंबर को सिम्बलाइज किया था जे से जेड से, और इसके साथ साथ उन्होंने और भी जो पीरियोडिक मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ थे उनको थोड़ा मॉडिफाइड किया, उन्होंने कुछ चीज़ों को अडॉप्ट की और टेबल को अकॉर्डिंगली मॉडर्न उन्होंने बनाया। जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे आप पीरियोडिक टेबल को वहाँ पे ग्रुप नंबर दिया गया है, उसके साथ साथ पीरियड्स भी शो किए गए हैं। जो येलोइश हैं वो नॉन मेटल हैं, जो ग्रीन हैं वो मेटल्स हैं, और जो यानी जो पिंक कलर से शो किए गए हैं वो क्या है, मेटलॉइड्स हैं। उसके बाद लेंथेनॉइड्स हैं, एक्टिनॉइड्स हैं। तो इस तरह से जो है पीरियोडिक टेबल को बनाया गया है। चलिए देखिए यहाँ पे जो ग्रीन एलिमेंट्स हैं विच इज़ अ मेटल जैसे कि आप जानते हैं, और जो यहाँ पे येलो बॉक्स में शो किया गया दैट इज़ अ नॉन मेटल जो कि गैसेस भी हैं।
और इसके साथ जो मेटलॉइड के बारे में बताया गया है, तो मेटलॉइड क्या होते हैं, जिनका प्रेजेंस जो होता है वो मेटल की तरह होता है, यानी बॉडी स्ट्रक्चर आपको जब आप देखेंगे तो वो मेटल की तरह शो करती है, लेकिन उनकी जो बेसिक प्रॉपर्टी होती है वो नॉन मेटल की होती है, तो वो कहलाते हैं मेटलॉइड्स। इसके साथ साथ जो लेंथेनॉइड अगर आप देख रहे हैं तो लेंथेनॉइड्स जो हैं, इसमें जो एलिमेंट्स के बारे में यहाँ पे बताया गया है, ये काफ़ी रेयर एलिमेंट्स हैं जो कि अर्थ पे मिलते हैं। एक्टिनॉइड्स को जब आप देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो होते हैं, ये उस तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्टिनॉइड के अंदर आते हैं। अब चलिए हम देखेंगे आगे। As we can see, the modern periodic table takes care of three limitations of the Mendelic periodic table. The anomalous position of the hydrogen can be discussed after we see what we on the basis on which the position of the element in the modern periodic table depends. The position of the elements in the modern periodic table. The modern periodic table has 18 vertical columns known as groups and the 7 horizontal rows known as the period. Let us see what decides the placing of an element in the certain group and पीरियड। अब देखिए यहाँ पे जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट जो है उसको देखा गया है कि जो जैसे कि आप जानते हैं कि 18 वर्टिकल कॉलम्स है और 7 हॉरिजॉन्टल रोज है, तो इन पीरियड्स और ग्रुप्स में किस तरह से एलिमेंट को फिट किया गया है वो हम चलिए देखेंगे आगे। You will find that all these elements contain the same number of the valence electrons. Similarly, you will find that the element present in any one group the same number of the valence electron. For example, elements fluorine and chlorine belong to the group 17. How many electrons do fluorine and chlorine have in their outermost shell? Hence, we can say that group in the periodic table signify the ideal outer shell of the electron configuration. On the other hand, the number of the shells increases as we go down in the group. There is an anomaly when it comes to the position of the hydrogen because it can be placed either in a group 1 or a group 17 in the first period. Can you say why? Now, if you see, you will find that these elements of the second period do not have the same number of the valence electron, but they contain the same number of the shells. You also observe that the number of the valence shell electron increase by 1 unit as the atomic number increases by unit on the moving from left to right in the period. Or we can say the atom of a different element with the same number of occupied shells are placed in the same period, like sodium, magnesium, aluminium, then the selenium, and then the sulfur and chlorine and the argon belong to the third period of the modern periodic table. Since the electron in this atom of these elements are filled in the it's a KLM shells. Write the electron configuration of these elements and confirm the above statement. Each period marks a new electron shell getting a filled. अब देखिए यहाँ पे जो बताए गए हैं जिन मेटल्स के इसके KLM शेल्स को फिल करने की किसमें कितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को जो है हमें यहाँ पे फिल करके प्रॉपर्ली बताना है और देखना है कि जो नए शेल हैं वो उसमें किस तरह का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है। Now if you let's see here. How many elements are there in the first, second and the third, fourth period? We can explain the number of elements in this period based on how electrons are filled into various shells. You will study the details of this in the higher classes. Recall that the maximum number of the electrons and in the number of given shell from the nucleus. अब देखिए यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स है जो पीरियड में बेस्ड किए गए इलेक्ट्रॉन वो वेरियस शेल्स को जो है वो फिल करते हैं, तो इसी चीज़ के बारे में आपके जो इन डिटेल स्टडी है वो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। लेकिन फ़िलहाल हमें ये जानने की कोशिश करना है कि किसी भी शेल जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हम एकोमोडेट कर सकते हैं विद द फॉर्मूला ऑफ 2n स्क्वायर, वेयर इज n इज़ द नंबर ऑफ गिवन शेल from the nucleus. For example, K shell is a 2 into 1 is to power 2, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे हम तो 1 आएगा, 2 into 1 is 1 and the first period has a 2 element and then the L shell की अगर हम बात करें तो 2 into 2 का स्क्वायर is a 4, so 4 into 2 is 8, hence the second period has a 8 element. And then if we see to the 3 or 4 or just like that, then the similar elements will come along. Just like 3 का square is 9, 9 into 2 is 18 elements and accordingly it will go longer. The reason for this you will study in the higher classes. अब इसका reason क्या है इसके पीछे वो जो है आप higher classes में जब जाएंगे तो आप पढ़ेंगे. The position of the element in the periodic table tells us about this chemical reactivity. अब जो position है table में इसकी ये जो है उसकी chemical रिएक्टिविटी किस तरह की है उस कंपाउंड की वो हमें बताता है। इसके साथ साथ position of the element in this table was good one. How would lead this to the element with the similar chemical property being placed in the same group?
Trends in the modern periodic table. Valency. As you know, the valency of the element is determined by the number of the valence electron present in the outermost shell of its atom. Activity 5.6. How do you calculate the valence of the element from its electronic configuration? What is the valency of the magnesium with the atomic number of 12 and the दिस इज एन एक्टिविटी. वैलेंसी क्या है बेसिकली देखिए, जो वैलेंसी होती है एलिमेंट की वो डिटरमाइन किससे होती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम. मतलब कितने आउटर मोस्ट शेल में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसके बेस पे जो है वैलेंसी देखी जाती है. सो बेसिकली वैलेंसी का मतलब क्या है, उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये उसकी वैलेंसी होती है. नाउ वी सी द एटॉमिक साइज. द टर्म एटॉमिक साइज रेफर्स टू द रेडियस ऑफ एन एटम. द एटॉमिक साइज मे बी विजुअलाइज्ड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम. द एटॉमिक रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज 37 pm. मतलब बेसिकली देखिए जो न्यूक्लियस से उसके आउटर मोस्ट शेल की दूरी है उसे उसका रेडियस निकालने से हम जान सकते हैं कि बेसिकली एक एटॉमिक का साइज़ क्या है. You will see that the atomic radius of decreases in moving from left to right along with the period. This is due to the increase in the nuclear charge which tends to pull the electron closer to the nucleus and reduces the size of the atom. अब देखिए यहाँ पे जो बताया है क्या है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो उसका किस तरह से पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जो है वो मतलब घटता हुआ दिखाया गया है बिकॉज ऑफ क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है उसमें. You will see that the atomic size increase down in the group, and this because the new shells are being added as we go down the down to the group. This increase the distance between the outermost electron and the nucleus so that the atomic size increases in spite of increasing in nuclear charge. अब देखिए जब यही बात हम अगर एटॉमिक साइज़ की इंक्रीज़ करने की बात करें ग्रुप के, अगर हम ग्रुप में नीचे जाने की जाते हुए देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि जो भी न्यू शेल्स हैं वो एडेड होते जा रहे हैं ग्रुप में. और इस तरह से क्या है बेसिकली जो उनका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है. यानी क्या है एटॉमिक साइज़ जो है इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन न्यूक्लियर चार्ज जो है क्या है वो जैसे का वैसे ही है. यानी इन स्पाइट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज एटॉमिक साइज जो है वो यहाँ इंक्रीज होता हुआ आपको दिखाई देगा. नाउ वी सी द मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टी. As we can see, the metals like sodium and magnesium are toward the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chloride are found on the right hand side. In the middle, we have a silicon, which is classified as the semi-metal or a metalloid because of the it exhibits some property of both metal and non-metal. In the modern periodic table, a zigzag line separates the metal from a non-metal. The borderline elements boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, and tellurium, and the polonium are intermediate in the properties as are this called a metalloids which is the semi metal. अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो जिगजैग लाइन बनी है जिसमें कुछ जो है मेटल हैं जो कि नॉन मेटल भी हैं, तो इसमें जो है एक बॉर्डर लाइन एलिमेंट है जैसे कि बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलेनियम, ये सारे क्या है इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट हैं जो कि मेटलाइट्स कहलाते हैं यानी कि सेमी मेटल. As we have seen in the chapter 3, the metal have a tendency to lose the electron while forming a bond, that is they are electropositive in nature. As the effective nuclear charge acting on the valence shell electron increases across the period, to the tendency to lose the electron will decrease down to the group. The effective nuclear charge experienced electron is decreasing because the outermost electron are further away from the nucleus. Therefore, this can be lost easily. Hence, the metallic character decreases across the period and increase down the group. Non-metal, on the other hand, are electronegative and they tend to form a bond by gaining an electron. Let us learn about the variation of this property. As तो यहाँ पे देखिए उसकी एक्टिविटी जो है परफॉर्म की गई है, आप इसे पढ़ लीजिएगा. As the trend is electronegative show, non-metal are found on the right hand side of the periodic table towards the top. These tends to help. अब जो B देखिए जो B non-metals हैं वो आपको right hand side में मिलेंगे periodic table के. This trend also helps us to predict the nature of the oxides formed by the element because it is known to you that the oxides of the metal are basic and that of the non-metals are acidic in general. ये चैप्टर देखिए यहाँ पे ख़त्म होता है. आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा. इन केस इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर और डाउट यू कैन आस्क मी डायरेक्टली एट एनी टाइम. थैंक यू फॉर द डे.